I greet you और all in the मुझे precious name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। This evening Bible study, we will read from book of Ephesians chapter 6. आज हम संध्या के समय में और इफिसी 6 अध्याय को हम पढ़ेंगे। We shall read from verses 5 to 17 responsively. और आज हम 5 से 17 पद और उसको बड़े ही और गंभीरता के साथ जिम्मेदारी के साथ पढ़ेंगे। Yes, Uncle, you one and I. Myself, okay. Verse 5. Servants, be obedient to them that are your masters, according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ. Verse 6. मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। Verse 7. With good will doing service, as to the Lord, not as to men. क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। Verse 9. And ye masters, do the same thing unto them, forbearing, threatening, knowing that your master also is in heaven, neither is there respect of persons with him. इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। Verse 11. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। 15. Okay. Yeah, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको। And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। Our most gracious and merciful God, हमारे प्रेमी विश्वासयोग्य पिताजी, Lord of lords and the King of kings, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, we thank you and praise you for the great and marvelous love towards us. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके महान और अद्भुत प्रेम जो हम पर दिखाई है। When we were yet sinners, ungodly, without strength, and the enemies unto thee, you have loved us with an everlasting love. प्रभु एक समय हम आपसे दूर थे, दुष्टता में थे, पाप में थे, परंतु आपने हमसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है। धन्यवाद देते हैं। Thank you for sending the only begotten Son, our Lord, as an atonement for our sins. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रिय पुत्र को आपने हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए भेज दिया है। हम धन्यवाद देते हैं। You have made us thy children through the blood of thy dear Son Jesus Christ. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके बेटे के द्वारा हमें अपना संतान होने का अधिकार दिया। हम धन्यवाद देते हैं। You have added unto the church and preparing us for the eternal glory. प्रभु आपने हमें अपने कलीसिया में जोड़ करके अनंत काल के महिमा के लिए तैयार करते जाते हैं। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। Lord, in the midst of pandemic, you have extended our lives, and we may show for the glory to others. प्रभु जी इस महामारी के दिनों में आपने हम पर अनुग्रह करके जीवित रखा है कि हम आपकी महिमा को प्रकट करें। So thank you for this evening. We could come around to the word
and we praise the name through songs. प्रभु, इस संध्या के समय में आपके नाम की महिमा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। We are studying from the book of Ephesians. Lord, the unction be given from above. प्रभु जी, हम जो इस समय इफिसियों की पत्री को ध्यान कर रहे हैं, आप स्वर्ग से आप ही हमें विचार दीजिए। What is necessary for our Christian life may be taught by thee from thy very word. प्रभु, जो कि आपकी मसीह जीवन के लिए जो विचार है, आप हमें दे दीजिए। We claim the anointing of the Holy Spirit. प्रभु जी, हम पवित्र आत्मा का विषय का दावा मांगते हैं। Every disturbances, work of the enemy, by faith we rebuke and bind in your mighty name. प्रभु, अंधकार की देखी अनदेखी समस्या शक्ति को मसीह के बहुमूल्य सामर्थ्य नाम में बांध देते हैं। Pray with thanksgiving the precious name of Lord and Savior Jesus Christ. महिमा आदर गौरव दे करके इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन, आमीन। Last week we have meditated the book of Ephesians, chapter 6, up to verses 4. पिछले सप्ताह हमने इफिसी 6 अध्याय 1 से 4 पद तक ध्यान किया था। We have seen the role of children and parents in a family. हमने देखा था बच्चों का जो काम है, जिम्मेदारी है, और माता पिता का जो जिम्मेदारी है उसके बारे में हमने देखा था। How children ought to obey the parents and how father and mother must take care of the children. तो कैसे बच्चे माता पिता की आज्ञा में रहें और कैसे माता पिता अपने बच्चों का जिम्मेदारी उठाएं। Today we will see about the servants, how servants ought to behave to their masters. तो आज हम दासों के बारे में देखेंगे, दास कैसे अपने स्वामी के साथ व्यवहार रखना है। Servants here means the employees in an office or in workplace, wherever, how they have to work. दास का अर्थ है जो नौकरी करते हैं और जो ऑफिस में बैठते हैं और जो काम करते हैं इधर उधर, उनको कहा गया है। How they have to be sincere and faithful to their masters. और वे कैसे और उनके स्वामी के लिए गंभीर और रहते हैं इस बात को। First, they must understand they are not serving the earthly master, they are discharging their services for the heavenly master. तो हम जो है इस विचार से हम देखते हैं, हम इस पृथ्वी का स्वामी की नहीं परंतु हमारा स्वामी स्वर्ग में, उसकी हम सेवा करते हैं। So keeping God in our mind, we must work in our workplace. तो हमारी हृदय को परमेश्वर रक्षा करे कि हम प्रभु की, हमारे स्वामी की सेवा कर सकें। Our service must be wholehearted service to the work which is assigned. तो हमारा जो सेवा है और उसको पूरे हृदय के साथ करने के लिए कहता है। That's what we are told in verse 5. Be obedient to them that your masters, according to the flesh, with fear and trembling, in the singleness of heart unto Christ. और इसीलिए वहाँ पर 5 पद में लिखा है कि अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उसकी आज्ञा मानो। So first we are told obedient to our masters. पहला विचार, हमें अपने स्वामी की आज्ञा को मानना है। In the workplace, whatsoever the masters they ask us to do, we have to do it with all obedience. और जहाँ कहीं भी काम हम करते हैं, उसके जो वहाँ का स्वामी है
उसका जो कुछ काम है उसकी आज्ञा को मानना है। Yeah, with all singleness of heart, with fear and trembling. और पूरे मन की सीधाई से डरते और कांपते हुए। It is not eye service, not pleasing the master, but we shall know there is a God which is above watching over. तो ये केवल दिखाने भर की सेवा नहीं है, परंतु मसीह के दासों के समान जो हमें देखता है उसके अनुसार करना है। Verse 6 says, not as eye service, as men pleasers, but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart. 6 पद में, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। So all those who are working, they must render a faithful service unto their masters, whether they see or not. The task which is given must be accomplished perfectly. और जो कोई भी जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वो वहाँ पर उसका स्वामी देख रहा हो या नहीं देख रहा है, लेकिन जो जिम्मेदारी जो काम दिया गया है उसे बड़े ही विश्वास योग्यता के साथ करना है। Some people they behave well when the master watches. When the master is not watching or the employer not watching, they will while away the time, waste the time. तो कई मनुष्यों को देखते हैं जब उसका स्वामी या उसका अधिकारी काम करता जो है सामने रहता है तो और अच्छे काम करते हैं, और उसके अनुपस्थिति में क्या होता है और वैसे नहीं करते हैं और अपने समय को गंवाते हैं। They are called men pleasers. और उसे मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला कहलाते हैं। Whether the employer is there or not, that we must see God above watching, and we have to be faithfully that work. तो ये अधिकारी हमारे महोदय हमें देख रहा हो या नहीं देख रहा हो, लेकिन परमेश्वर हमें देख रहा है इसी उद्देश्य से और काम करना है। Yeah, such a people will be rewarded, recognized by the masters. और कई ऐसे लोग हैं जो स्वामी उसको ध्यान केंद्रित कर रहा है, इसके समान वो करते हैं। See chapter 22 Proverbs verse 29. देखिए नीति वचन 22 अध्याय का 29 पद हम पढ़ते हैं। Seest thou a man diligent in his business, he shall stand before kings, and he shall not stand before mean men. लिखा है, यदि तू ऐसे पुरुष देखे जो काम काज में निपुण हो, तो वह राजाओं के सन्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सन्मुख नहीं। Yeah, diligent in business, that means work what is given, that must be diligent. और जो काम दिया गया है उसको करने के लिए निपुणता। So Christian employees must, whatever it may be, the work given perfectly must be accomplished, seeing that they are doing for God. और जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो कोई भी काम दिया जाता है उसे बड़ी ही शुद्धता के साथ, सिधाई के साथ करते हैं, परमेश्वर देख रहा है उसके समान। See, some masters are hard, but yet you have to obey to them. जबकि जो स्वामी होता है और वो एक कड़ा व्यक्ति होता है, फिर भी वे लोग उसके अधीनता में करते हैं। Yeah, we cannot cheat our masters in our work. हम उनके कामों के द्वारा अपने स्वामी को और उसको धोखा नहीं देते हैं। Verse 7. 7 पद हम पढ़ते हैं। With good will doing service as to the Lord and not to men. और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जान कर सच्चे हृदय में से करो।
Yeah, whether you work in the office or in a factory or in a field, whatever work is given, and Christian employees must think we are servicing unto God, service unto God. वो जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं, चाहे वो और दफ्तर में काम कर रहे हो या कारखाने में हो या जो है कि खेत में काम कर रहे हैं, वे जो मसीह लोग हैं ये सोच कर करना है कि हमारा परमेश्वर हमको देख रहा है। If the servants they render heartful service, definitely the master will understand. Oh, really, God is with this person. He is really a child of God. और जब हम हृदय की बड़ी आजादी के साथ और बोझ के साथ अगर काम करते हैं दास, तो उसका स्वामी जरूर उस बात को समझेगा और वो कहेगा कि ये व्यक्ति जो है और वो ऐसे काम कर रहा है जो परमेश्वर उसके साथ है, इसलिए ऐसे काम कर पा रहा है। So in that time when Paul writes this epistle, at the time in Rome there were so many slaves were there. और उस समय जो पौलुस इस पत्री को लिखा है, रोम में उस समय बहुत सारे और मनुष्य के दास थे। Yeah, around 60 million slaves were there. और वहाँ पर 60 लाख और लोग थे वहाँ। Yeah, so slaves are different from servants. और जो दास होते हैं और वो जो नौकरी करते हैं उससे अलग होते हैं। Yeah. Servant can do the work, he does not like, he can leave. But a slave is not like that. Slave has to stay because he is purchased with a sum of money. तो ये जो दास होता है ये और नॉर्मल दास होता है और दूसरा बंधुआ दास होता है जिसे उसको पैसे से खरीदा जाता है। So we don't have slavery now, but we have the system of master and the employer and the employee, master and the servants. तो आज ये बंधुआ दास तो नहीं है और आज जो है ये एक स्वामी और दास के समान है और दफ्तर में जैसे ऑफिसर रहता है उसके नीचे रहते हैं, उस तरह से है। No. So all those who are working under a master must render a faithful service, serving the master, thinking that they are rendering service unto God. और इस रीति से हरेक दास इस रीति से और डरते और भय करते हुए सेवा करे जैसे स्वामी उसका और कारण हो और उसको प्रसन्न हो सके, ऐसे सेवा करना है। Yeah, then they will be rewarded. तभी उसे प्रतिफल मिलेगा। Verse 8. 8 पद पढ़ते हैं। Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive the Lord, whether he be bond or free. 8 पद में, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। Then secondly we see about the masters. दूसरा विचार हम देखते हैं ये स्वामी के बारे में है। Verse 9. 9 पद में, and ye masters do the same thing unto them, forbearing, threatening, knowing that your master is also in heaven, neither is there any respect of persons with him. हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्षपात नहीं करता। So the masters, you can say the manager or a supervisor or the owner, whatever it may be, and these masters, they take work from their employees and they must treat the employees very well with all honor and respect.
तो यहाँ देखिए स्वामी कोई भी हो सकता है, चाहे वो मालिक हो या वहाँ पर जो सुपरवाइजर काम करता है या उसके नीचे है, पर जो उनके नीचे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है और इस बात को याद रखते हुए कि उसका स्वामी स्वर्ग में है। Yeah, it's very important to encourage the workers and honor them and regard them is very important. और ये बात बड़ा प्रमुख है कि उनका आदर करे और उनको उत्साहित करे और उनको प्रतिफल के लिए तैयार कर सके। Yeah, we read about Boaz. He is a very good master. He treated his servants well. और हम योआब के हम लोग बोआज के बारे में देखते हैं, जो ऐसा अच्छा स्वामी है जो अपने और दासों पर अच्छा व्यवहार किया है। So he came to the field and he greeted his workers, saying, "The Lord be with you." और वहाँ पर बोआज आकर के वहाँ पर मैदान में जो खेत में काम कर रहे हैं उन लोगों को देखता है और उनको आशीष देता है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ रहे, ऐसे लोग कहते हैं। Then the people they said, then the workers they said, "The Lord bless thee." और वहाँ काम करने वाले लोग हैं उनको देखकर कहते हैं कि परमेश्वर तुझे आशीष दे। See Ruth chapter 2 verse 4. देखिए रूत की किताब 2 अध्याय और उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं। और बोआज बेतलहम से आकर लौने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारा संग रहे, और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। Many masters they treat their workers or servants like degraded. They look them down. तो कई ऐसे स्वामी होते हैं, उनको और जो उनके दास हैं उनको नीचा करने के लिए उनसे व्यवहार करते हैं। They will be very much proudish and they don't regard them, they don't honor them. और वो लोग बहुत ही स्वार्थी होते हैं, ना उनका आदर करते हैं, ना उनको वो कोई प्रतिफल देते हैं। Lord Jesus Christ is our master. He is a son of God, came from heaven, and he called the disciples, the fishermen, and as ye are my friends. और प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय स्वामी है और उसने फिर स्वर्ग के पृथ्वी पर आया और उन्होंने मछुआरों को बुलाया और उनको कहा कि तुम मेरे मित्र हो। He said, I will not call you as servants, I will call you as my friends. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें आपसे दास ना कहूँगा, मैं तुम्हें मित्र कहूँगा। Yeah, the 12 whom Jesus Christ has chosen to be with him, they were his servants. और जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो बुलाए गए थे वो 12 थे और उनके दास थे। No, but he says, hereafter I will not call you as servants, I will call you as friends. परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा और कि मैं तुम्हें आपसे दास ना कहूँगा, मैं तुम्हें मित्र कहूँगा। So treating his disciples as his friends, see, master and servants, what a great regard for the servants. तो ये देखिए कितना अच्छी और भली बात है कि कैसे स्वामी और जो दास है उनके साथ कैसे व्यवहार कर रहा है, उनको मित्र के समान उससे व्यवहार कर रहा है। See chapter 15 of John's Gospel. देखिए मत्ती यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय And verse 15. और 14 पद में हम पढ़ते हैं, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो।
What a wonderful thing. ये कितना प्रमुख बात है। Henceforth, I call you not as servants, but friends. और आगे मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, मैं तुम्हें मित्र कहूँगा। Yeah. So, Christian masters or employers or managers, they must be very faithful, and knowing that there is a master above, they have to give account, treat their servants or their employees very well, and treat them with all dignity. तो देखिए प्रियो, ये मसीही और जो स्वामी होते हैं और उनके स्वामी, मसीह स्वामी होने के नाते जो दफ्तर में काम करते हैं या जगहों में काम करते हैं, सबने जो सहकर्मी नीचे जो रहते हैं और उनके साथ बड़ा ही अच्छा रीति से और शालीनता से व्यवहार करना है, क्योंकि ये बात को जानना है कि उनका स्वामी स्वर्ग में है। Yeah. If the master is loving and taking care of his servants, and definitely the servants, they work very well and they love the master whatsoever the master says. और जब इस रीति से स्वामी अगर उनका चिंता करेगा, शुद्धि लेगा, और तभी उनके दास उनके अधीन रहेंगे, आदर करेंगे और उनको करेंगे। Then there will be harmony, then there will be good productivity, then there will be joy everywhere. तब वहाँ पर एक अच्छा मेल होगा, अच्छी और वहाँ वातावरण होगा, और उस रीति से जो कुछ भी करेंगे सब अच्छा हो जाएगा। Knowing there always there is a master above. और इस बात को हमेशा जानना है कि उनका स्वामी स्वर्ग में है। Yeah. So the masters and servants, the relation, how it should be. और जो स्वामी और दास है और उनका जो संबंध है वो कैसा है? Yeah, Christians are always peacemakers. मसीही हमेशा मेल रखने वाले होते हैं। Yeah, we are children of God. Wherever we work, whether as a servants or worker or as a master, we must bring peace and we must bring blessing to the place where we work. और जहाँ कहीं भी हम काम करते हैं मसीही लोग, चाहे वो दास हो या कोई काम करने वाले वहाँ पर सुपरवाइजर हो या वहाँ पर स्वामी हो, वो हमेशा और मेल रखने वाला होना चाहिए और प्रभु जो उसका स्वामी है उसकी महिमा करने के लिए। Yeah, then the Lord will be with that person, whether employer or employee, and there will be a blessing. God's name will be glorified. और उस स्थान में तभी चाहे दास हो चाहे स्वामी हो और परमेश्वर आशीष देगा और परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। Yeah, we know about Joseph, while in Potiphar's house or even in prison, God was with him because he was very faithful. तो हम जानते हैं कि यीशु के बारे में वो पोतीफर के घर में रहता था और किस रीति से उसने उसके स्वामी की सेवा किया और उसने जो प्रतिफल पाया, इस बात को हम देखते हैं। They could understand God is with him. और इस बात को उसने समझा कि परमेश्वर उसके साथ है। So the workers are masters. If they are following the word of God, God's name will be glorified. चाहे वो स्वामी हो या दास हो और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, तब परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। Yeah. So now we will see in verse 10 onwards about our Christian warfare. अभी हम 10 पद से आगे देखते हैं, ये मसीही आत्मिक युद्ध के बारे में देखते हैं। Verse 10 he says, finally my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. और अंत में प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में है कि भाइयों बलवंत बनो। There are things which make us weak, but we must be strong in the Lord and in the power of his might. तो हो सकता है और हम दुर्बल हों, लेकिन हमें प्रभु में
और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। Yeah, Christian life is a life of a battlefield. जो मसीही जीवन है, ये जीवन जो है कि युद्ध भूमि का जीवन है। Yeah, we find everywhere, every day there is a war which we have to fight. और यहाँ हम पाते हैं, और जहाँ कहीं भी जिस स्थान में भी, और ये एक युद्ध के समान और समय है। So here we are told about our enemies. और यहाँ हम देखते हैं हमारे विरोधी शत्रु के बारे में देखते हैं। So the devil, Satan, is our enemy. हम देखते हैं कि शैतान हमारा शत्रु है। In our Christian life, we have to face 3 enemies. हमारे मसीही जीवन में हम 3 शत्रुओं को से हमें सामना होता है। One is the devil. पहला शैतान है। Secondly, the world. और दूसरा ये संसार है। Thirdly, our flesh. और तीसरा हमारा देह, हमारा शरीर है। So we have to fight a battle against the 3. और हमेशा हमें इन विरोधियों से युद्ध करते रहना है। So the world refers to the worldly kingdom. और पहला हम देखते हैं कि संसारिक राज्य। The flesh refers to the sinful nature. और ये जो शरीर है जिसमें पाप का स्वभाव है। That devil directly, he with the permission of our Lord, he attacks God's people. और जब परमेश्वर अगर उसको और अनुमति देता है तो हमारे ऊपर में और उनके लोगों के ऊपर में चढ़ाई करता है। He took permission from God and he attacked Job. और उसने, शैतान ने और परमेश्वर से अनुमति लेकर के आयुब के ऊपर और उसने प्रबल हो गया है। So Satan is very cunning and he uses his fallen angels and to fight against God's people. और ये शैतान एक गिराया हुआ दूत है और वो जो है अपने प्रभु के लोगों के ऊपर में और प्रबल होता है। So we are told we have to put on the whole armor of God. और यहाँ हमें कहा गया है कि सारे हथियार को बांध लेना है। Now let us see the devil, the leader of our battle, our enemy. तो हम देखते हैं यहाँ शैतान हमारा जो शत्रु है उसके बारे में देखते हैं। So devil has many names. और शैतान के बहुत से नाम हैं। First he is accuser. Devil means accuser, accuser of the brethren. और जो शैतान का अर्थ है वो दोष लगाने वाला, अपने भाइयों को दोष लगाता है। Every day he accuses God's people before God. और परमेश्वर के सामने प्रत्येक दिन परमेश्वर के लोगों को दोष लगाता रहता है। Revelation 12:7-11. और प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का और 7 से 11 पद हम तक पढ़ते हैं। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उसके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर वे स्वर्ग में यह बड़ा शब्द आते सुनाई दिया, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया।
वे मेमने के लहू के कारण और गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। Yeah. He is also called as Satan, who is our adversary. और उसको शैतान कहा गया जो हमारा और दोष लगाने वाला है। In Matthew's Gospel, chapter 4, verse 3, we are told he is the tempter. और मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय का 3 में हम पढ़ते हैं वो एक परखने वाले के रूप में देखते हैं। John's Gospel 8:44, we are told he is the murderer and the liar. और यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय का 44 में हम देखते हैं वह हत्यारा है और झूठा है। Then 1 Peter 5:8, we are told he is compared as a lion, roaring lion, walketh about whom he may. पहला पत्रस 5 अध्याय का 8 पद में हम देखते हैं 7 पद में कि वो गरजने वाले सिंह की समान है। Then in Genesis chapter 3 verse 1, we are told he is a serpent, old serpent. और उत्पत्ति 3 अध्याय का पहला पद में हम देखते हैं वो पुराना साफ है। Then in 2 Corinthians 11:13-15, we are told he is like an angel of light. और पहला दूसरा कुरिन्थी उसका 11 अध्याय में हम देखते हैं कि वहाँ एक चमकता हुआ स्वर्गदूत के समान है। Then we are told in Colossians chapter 4 verse 4, he is the God of this age. 2 Corinthians 4:4. और वहाँ पर हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थी 4:4 में वो इस पृथ्वी का सरदार है के रूप में हम देखते हैं। God of this age. और इस संसार का ईश्वर के रूप में देखते हैं। Who is he? He is Lucifer, the fallen angel. वो कौन है? वो लूसीफर गिराया हुआ स्वर्गदूत है। The devil is Satan. He is Lucifer, the anointed cherub. He rebelled against God and he wanted above God, wanted to be above God. So God has cast him down. तो हम देखते हैं कि वो प्रधान दूत है और लूसीफर है और उसने जो है कि चाहा कि परमेश्वर से भी अधिक ऊंचे पर और बने उसके अंदर में घमंड था और परमेश्वर भी अधिक ऊंचा होना चाहता था, इसीलिए उसे गिरा दिया गया है। Isaiah chapter 14 verses 12-15. यशायाह उसका 14 अध्याय और 12 से 14 पद तक हम पढ़ते हैं। यशायाह उसका 14 अध्याय 12 से 14 पढ़ता हूँ। मैं मेघों से भी हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे कटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी अधिक ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। This is the origin of Satan. और ये जो है शैतान का एक योजना है। Since then he is working against God, deceiving God's people, fighting with God's people. और जिस दिन से परमेश्वर के विरुद्ध में हो गया, उस दिन से परमेश्वर के लोगों को धोखा दे रहा है, परमेश्वर लोगों को मारना चाह रहा है। Since he is a fallen angel, he is mightier than man, but he is lesser than God. तो उस दिन से जो हम देखते हैं कि वो मनुष्य से तो प्रबल ज्यादा ताकतवर है, लेकिन परमेश्वर से वो कम है। Yeah, that's what we are told. One who is in us is greater than one who is in this world.
और इसलिए वहाँ देखते हैं जो तुम्हारे अंदर हमारे अंदर में है और उससे बड़ा है संसार से, जो हमारे अंदर में है वो संसार से ज्यादा बड़ा है। Yeah, 1 John 4 verse 4. हाँ देखिए, पहला यूहन्ना 4:4, पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 4 पद। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है उससे जो संसार में है बड़ा है। So, knowing our devil, the enemy who is working against us, he wants to defeat us in way, in some form or other, that we may not receive the fullness of God. तो देखिए, शैतान किस रीति से, ये बात को हमें जानना है कि वो हमारा विरोधी है और हमेशा वो चाहता है कि हमें धोखा दे और हम परमेश्वर को ना पहचाने ना जाने। So, the devil has only local power. He is not the omnipotent power. God is only omnipotent. Devil has only local power. And the devil has his fallen angel along with him, 1/3 of the angels, and also all the people, those who do not worship God and His Son Jesus Christ, they are all the agents of the devil. तो यहाँ हम देखते हैं कि वो केवल उसकी शक्ति यहाँ पर के लिए ही है, शैतान का शक्ति, लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और वहाँ उसका राज नहीं है, वहाँ से धकेल दिया गया स्वर्ग से, और 1/3 स्वर्गदूतों को लेकर के जो परमेश्वर की आराधना उपासना नहीं करते हैं, और ऐसे लोगों को वो उसके साथ में है और उसको भरमाता है। In Revelation chapter 12 verse 4 we read there when Lucifer he fell from heaven and 1/3 of the angels also have fallen along with him. और ये प्रकाशित वाक्य की किताब में हम 12 अध्याय में देखते हैं कि उस शैतान जो है उसको गिरा दिया गया है और 1/3 एक को उन्होंने अपने साथ ले लिया है। They deceive people of this earth and thus they make the people to rebel against God and not to give glory to God. तो वो लोगों को धोखा देता है और लोगों को परमेश्वर के विरोध में करता है कि वो परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को ना दें। So the main aim of the devil is to rob the glory of God. तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? परमेश्वर की महिमा को और चुराने का काम वो करता है। When Jesus Christ was tempted by the tempter in Matthew's Gospel chapter 4, he said, if you fall and worship me, I will give all the kingdoms of this world. और हम देखते हैं कि मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय के उस 4 पद में किस तरह से शैतान जो है परखने वाला है और प्रभु यीशु मसीह को इस रीति से परीक्षा किया, अगर तुम झुक करके और मुझे आप प्रणाम करोगे तो मैं ये सारा और वैभव तुझको दे दूंगा, क्योंकि मुझे मेरे पास है। So the devil always seeking men to worship him. और शैतान हमेशा चाहता है कि मनुष्य उसकी आराधना करे। See Matthew's Gospel 4. देखिए मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय 8 to 10. हाँ, उसके 8 से 10 तक पढ़ते हैं। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। So the tempter, he always deceives people. He is called as a deceiver, and they divert the people from worshipping the true God to the false God. तो यहाँ देखते हैं कैसे वो परखने वाला है और धोखा देने वाला है,
कैसे वो जीवते परमेश्वर की आराधना को चुरा करके दूसरे जो झूठे देवता हैं उसकी ओर फेर देता है मनुष्यों को। So behind every idol there is a devil, and when people they worship the idol, the devil it robs that glory from the people. तो ये जो मूर्तियां हैं, मूर्तियां के पीछे में और शैतान रहता है, और जो कोई भी मूर्तियों को आराधना करते हैं वो परमेश्वर और वहाँ पर ऐसे आराधना करके और महिमा को चुराते हैं। Satan is so cunning and he deceives the people and takes the glory. और शैतान बहुत ही दुष्ट है, चतुर है, और कैसे वो परमेश्वर की महिमा को चुराने वाला है। He is very active and alert, walking about whom he may devour. और वो बड़ा चौकस रहता है कि कैसे किसको जो है वो धोखा दे। In Job's book chapter 1, he walks up and down. और हम देखते हैं ये आयुब की किताब में वो ऊपर और नीचे आना जाना करते रहता है। God, the day God asked when the sons of God gathered, and Satan also came, and God asked, "Where are you coming from?" और शैतान को परमेश्वर के दूत, परमेश्वर के पुत्र वहाँ इकट्ठे उपस्थित हुए थे, उसके बीच में शैतान आया तो यहोवा ने उससे पूछा तू कहाँ से आता है? Then he said, I am coming, walking up and down. तब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। So what a terrible man! Why he is walking up and down to devour God's people? और जो कोई इधर उधर मनुष्य रहते हैं, फिरते हैं, और उनको वो धोखा देने के लिए है। Chapter 1 verse 7, Job. देखिए आयुब की किताब 1 अध्याय 7 पद। यहोवा ने शैतान से पूछा तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। So going to and fro in the earth and walking up and down. और पृथ्वी पर इधर उधर जाता है और ऊपर नीचे आता जाता है। That is his work. अरे उसका काम है। Very active. और बहुत ही फुर्तीला है, तेज है। He wants to deceive God's people. वो चाह रहा है कि परमेश्वर के लोगों को वो धोखा दे दे। Walking about whom he may devour. He is like a roaring lion. और वो जो है गरजने वाले सिंह के समान है कि किसको फड़ खाए। So we must be very careful. तो हमें बहुत ही सावधान रहना है। See 1 Peter chapter 5. देखिए 1 पतरस 5 अध्याय verse 8. 8 पद। सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। So if you want to attack the enemy, first we must know his power. और जब शत्रु को हम आक्रमण करते हैं तो पहले इस बात को जानना है कि उसके पास कितनी सामर्थ है। So know his power, we enrich our power, then we can overcome him. और जब उसकी शक्ति को जान लेते हैं तब हमारी शक्ति को हम बढ़ाते हैं, तभी हम उस पर जयवंत हो सकते हैं। If you underestimate the devil, we will go and we will fall prey. He will deceive us. He will defeat us. और वो जब हम देखते हैं वहाँ पर वो लोग शैतान को अगर हम उनसे जब युद्ध करते हैं तो हमें प्रार्थना करना है, नहीं तो हमें हरा देगा और गिरा देगा। We need not to worry about him. Our Lord Jesus Christ has won the battle on the cross. He got victory for us. और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर में जयवंत हुआ, इसलिए हमें उससे डरना नहीं है। So we are fighting the battle from victory, from Jesus. Jesus is our victor.
In Him we get victory. और तो हमें युद्ध करना है तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम युद्ध करना है और हमें उससे जय पाना है। So that is how many strategies that the devil uses to defeat God's people. और बहुत सारी युक्तियां करके वो और परमेश्वर के लोगों को और हराना चाहता है। We are not fighting against people, but we fight against the devil and his angels. और हम मनुष्य से नहीं परंतु हमें उस आकाश के अधिकारी जो हाकिम है और स्वर्गदूत है उससे हमारा युद्ध है। See chapter 6 verse 12 Ephesians. इफिसी देखिए 6 अध्याय और 12 पद पढ़ते हैं। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। Against the devil. और हमारा और विरोधी हम शैतान से है। So that's what we children of God must put on the whole armor of God. और इस कारण हम परमेश्वर के संतान होते हुए सारे हथियारों को बांध लेना है। Verse 11. उसका 11 पद हम पढ़ते हैं। Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। He is wiles against the devil. His cunningness against God's people. और वो उससे ज्यादा बुद्धिमान होना और वो परमेश्वर के लोगों को भरमाता है, युक्ति करता है। The sinless people, Adam and Eve, they first created by God. They were deceived by the cunning Satan, serpent. और इस चतुराई के द्वारा शायद और जो सांप ने जो है और पहला जो पाप नहीं किए हुए मानव मनुष्य को आदम हवा को उसने जो है और धोखा दे दिया है। So how much more he is active and alert now to deceive even the chosen people. और अभी वो कितना ही और फुर्तीला तेजी से काम कर रहा है कि वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को और भरमा दे। So we need to put on the whole armor of God. हमें इसीलिए आवश्यक है कि हम सारे हथियारों को बांध लेना है। Verse 13. और 13 पद हम पढ़ते हैं। Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। So whole armor is explained from 14th verse onwards. देखिए सारे जो हथियार हैं उसका और वर्णन यहाँ पर 14 पद में किया गया है। Verse 14 says, stand therefore having your loins girt about with the truth, and having on the breastplate of righteousness. और देखिए 14 पद में लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के झिलम पहनकर। The first thing in the whole armor is the loins. और पहला जो और हथियार है सब बातों में वो है सत्यता से। If you look at a soldier, the soldier will have a very tight belt. हम देखते हैं जब हम सैनिकों को तो वे बड़ा ही और मजबूत उसका बेल्ट लगाते हैं। Not like our leather belt, it is a canvas belt, so with very tight they put. तो हमारा जैसा ये जो है ये चमड़े का छोटा सा ये जो बेल्ट नहीं रहता है वो मोटा रहता है, मजबूत रहता है और वो बेल्ट वो लगाते हैं।
The belt must be very tight to their loins. और उस बेल्ट से उसका कमर को पूरी रीति से कसते हैं। Then in the belt, basing the belt, there will be suspenders, and over that they will carry their load. और उसी कमर के द्वारा उसको दृढ़ता मिलता है और वो अपने और कांधे पर और भी बोझ को उठा पाते हैं। So from the belt they hang their knives, their rifles, or again their water bottles, whatever it may be, based on the belt. जो कुछ भी वो लटकाते हैं, उनके हथियार हो या पानी बोतल हो या और कुछ भी वस्तुएं वहाँ पर लटकाते हैं, तो उनका आधार जो मजबूती होता है वो बेल्ट में होता है। If no belt means very difficult for them to carry such things. अगर बेल्ट ऐसा नहीं रहेगा तो उनको और सारे वस्तुओं को ले जाने के लिए बड़ी ही कठिनाई होगी। When I was in NCC, my boyhood days, and some boys they put the belt, loose belt, then the instructor will come and he will just shake the belt. The belt is loose and he will give punishment. Then he will tell, put the belt very tight. तो इस रीति से जब जवान थे और बचपन में और उन्होंने एनसीसी में थे, तो इस रीति से वो पतला बेल्ट को पकड़े थे, तब वहाँ पर आकर के उन्होंने पकड़ कर कहा कि ये ढीला वाला बेल्ट है, इसे मजबूती से उसको लगा लो, कहा टाइट बेल्ट, और इसको कस करके बांधना है। If the belt is loose, they cannot run because they have to catch one hand with the belt and they cannot run fast and it will be difficult to run. अगर मजबूती से अगर उसको कसते नहीं है तो दौड़ने के लिए असुविधा होगी, क्योंकि एक हाथ में वो पकड़े रहेंगे और दूसरा और दौड़ते रहेंगे और दौड़ नहीं पाएंगे। So lions girded with the belt. What is that belt? The belt is called truth. और ये कमर कसना है और मजबूती से, और जो बेल्ट क्या है, ये सत्य है। The whole victory of a soldier depends on truth in his life. और उस सारी विजय को कैसे जीते हैं, वो बेल्ट के और सामर्थ्य के और सत्यता के द्वारा जीतते हैं। Our life depends on truth. हमारा जीवन और सत्य में आधारित होना है। Devil is a liar. Lord Jesus Christ is the truth. और शैतान जो झूठा है और प्रभु यीशु मसीह सत्य है। Jesus Christ said in 16 verse 14 that I am the way, the truth. 14 John's Gospel chapter 14 verse 6. 14 verse 6 either I am the way, the truth and the life. प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय 6 पद में कहा, मैं मार्ग और सत्य और मैं ही जीवन हूँ। Is truth. हाँ, वो सत्य है। Then Exodus chapter 36 verse 34 verse 6. निर्गमन 34 अध्याय का हम 4 पद में भी इसको देखते हैं। 34:6. निर्गमन 34 का 6 पद। यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा ईश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। Abundant goodness and truth. और अद्भुत और बहुतायत का अनुग्रहकारी, करुणामय और सत्य। So truth is essential in a believer's life. हमारे और विश्वासी जीवन में ये सत्य बहुत ही आवश्यक है। If no truth, we cannot withstand the attack of the enemy. अगर हमारे पास सत्य नहीं है
तो हम शत्रु के सामने में खड़े नहीं हो पाएंगे। Always tell truth. Everywhere you tell the truth. Whatever it happen, tell the truth. और हमेशा सत्य बोले, जहाँ कहीं भी सत्य बोले, किसी भी परिस्थिति में हो क्यों ना हो, हमेशा सत्य बोलना। Yeah, because our God is truth, so we are also truth. As long as we tell the truth, we stand. और क्योंकि हमारा परमेश्वर सत्य है, इसलिए हमें भी सत्य बोलना है, और सत्य बोलने के कारण हमें स्थिर और रहना है। Now, if you tell lie, you have to tell lies, 1,000 lies. To cover one lie, you have to tell another lies, and 1,000 lies you have to tell. और अगर झूठ बोलते हैं तो आप और झूठ बोलते हैं और झूठ बोलते हैं, एक झूठ को ढांपने के लिए 1000 बार झूठ बोलना पड़ेगा। Yeah, so we are told in book of Titus about the Cretans, they are always liars and slow bellies. और देखिए तीतुस की पत्री में वहाँ पर और क्रेती लोगों को लिखा है, वो हमें सदा और पेटू है और वो सदा झूठ बोलते रहते हैं, उसकी ऐसे लिखा है। Titus 1:12. देखिए तीतुस की पत्री पहला अध्याय का 12 पद में, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। सदा, always liars. वो सदा मतलब हमेशा, What open the mouth, lie only will come. हर मुंह खोलते ही झूठ निकल के आ जाता है। We must be very careful. और इसके लिए हमें बहुत सावधान रहना है। Children of God, tell truth. Always truth. Whether we get gain or loss, tell the truth. और परमेश्वर के बच्चे होते हुए सदा हमें झूठ सत्य बोलना है, चाहे वो हानि हो या लाभ हो, हमेशा झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य बोलना है। That is our loyalty. That will give strength to the rest of our body. और यही हमारा कमर, यही हमारा स्थिरता है, और यही हमारा शरीर को मजबूत रखता है। If you want to defeat the enemy, you need to tell truth, because he is a liar. If you tell lie, you will fall flat before him. और अगर हमें और शत्रु को जीतना है तो हमें झूठ बोलेंगे तो हम गिर जाएंगे, इसलिए हमेशा सदा सत्य बोलना है। So let us decide to tell truth always. तो आइए इस बात को निर्णय लें कि सदा हम सत्य बोलें। As the Lord leads, next week we will continue further armor of God. तो परमेश्वर का इच्छा रहेगा तो अगले सप्ताह और भी कुछ परमेश्वर के शास्त्रों को हम ध्यान कर सकेंगे। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Our living loving Father, हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, thank you for the blessed time granted around the word. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जो और आशीषित समय प्रभु के वचन के द्वारा आपने हमें दिया है। Thank you for speaking to us about masters and servants. प्रभु जी, हम और स्वामी और दास के बारे में हमने ध्यान किया है। Thank you for speaking to us about our enemy, how we have to overcome our enemy by having the whole armor of God. और प्रभु हमने देखा कि शत्रु के बारे में और शत्रु से विजय पाने के लिए सारे हथियार बांधने के बारे में हमने देखा है। Thank you, Lord. You have won our one great victory for us over the enemy. और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, शत्रु के ऊपर में विजय करने वाला एकमात्र प्रभु हैं। Lord, thank you for the whole armor of God you have given us, that we may fight against the wiles of the enemy. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें सारे हथियारों को दे दिए हैं ताकि इस शत्रु को हम विजय प्राप्त कर सकें। Lord, thank you for enabling us to study about the loins girded with the truth, how truth is important in our lives. प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं ये सत्य की कमर कसकर बांधने के विषय में, जो सत्य के बारे में और आपने हमें बताया है। Always tell truth in all situations.
हर परिस्थिति में सदा हमें सत्य बोलना है। Forgive all our failures. प्रभु उन सारे हमारे और जो कमी के लिए हम क्षमा मांगते हैं। Sometimes we told lies. कई बार हम झूठ बोल देते हैं। Oh Lord, forgive such things in our lives. प्रभु सही ऐसे परिस्थिति के लिए, ऐसे बातों के लिए आप क्षमा कर दीजिए। The word of God says, all liars shall be cast into the lake of fire. प्रभु का वचन कहता है सारे झूठों का भाग और अनंत काल का अग्नि जलता हुआ नरक है। Lord, we may tell truth always. प्रभु अब दया कर आप में सहायता कर कि हम सदा सत्य बोल सके। Lord, help us to get victory over the enemy every day in our lives. प्रत्येक दिन प्रभु हम अपने विरोधी शैतान से हम जय पा सके सहायता प्रकट करें। Bless the word given. दिए हुए वचनों पर आशीष दें। Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। Amen. आमीन। Now the grace of Lord Jesus Christ, Lord the Father, the communion and the fellowship of the Holy Spirit be with us. आमीन।